Good morning students, welcome back to the online sessions of Science Class 8. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested to you, don't go outside your homes, stay home, stay safe. Because if you see that into the around of us, there is very fast that COVID-19, that pandemics that can be spread really very fast. So unnecessary, don't go into the crowded places, just avoid to go outside your homes unnecessary, use the face mask covers, always be take sanitizers with you, always be wash your hands within a 20 seconds as a specific time of interval. So stay home and stay safe. Now the students, today we'll discussing about the new lessons of your chapters, that is chapter number 11, that is force and pressure, right? So that is a segment of physics, force and pressure. Now first of all, what we have to study in this chapter? Generally we have to study about what is force, how it can be caused, effect of forces, type of forces, what is called pressure, what is the relationship between the pressure and areas, what do you mean by the pressure extracted by the liquids, and what is the atmospheric pressure. These are the general topic we have to discuss. So before we starting, so have you observed that a body that can be neither a stop nor by change its shape or speed, direction itself? If you have seen any body that can be change its shape or maybe change its direction, maybe decrease its velocity, increase its speed, or maybe it can be start or it can be stop. So this generally cannot be done itself. So for example, when you go into the school, when you go school into the morning, you apply specifically part of force to lift your bag. If you want to lift your bag, you have to apply the force to school bag, which is carry on to put out your shoulders. Without applying the force, bag neither will be come onto your shoulders, right? So we have to be apply the force when you enter into the shop or when you enter into the bank, right? So you push. There is a return onto the door, you have to be pushed. So when you have to be pushed the door to get into the enter into the shop or maybe the bank, then you have to be provide the force, right? As well as you have generally seen into the like sports, football players are there, cricket players are there. So when we see that the ball that is traveling very great speed, when the batsman that hits the ball or maybe the footballer that kicks the football, so at times you will see that all the players that generally deflecting the body of the speed ball cleverly, they have to be deflect the ball very cleverly. So picking up, opening up, as well as clicking, hunting, lifting, etc. Whatever the activities they have to be implement, they usually that should be resulting into some kind of change into their momentum of object or maybe the motion of object. So that is generally we've seen that what are the changes of the object or how the motion or how the object that can be changed a specific formation. So hence we generally conclude that it is generally require a specific kind of the force to start or stop the object, maybe a motion object. It also have to the change of object, its velocity that can be changed, shape that can be changed, direction that can be changed, its state of motion that can be changed, which all the activities that have been completed by applying the specific unbalanced effect that is called as a force. So when the body that generally having to be changes in the one form to another form that require the specific forms. So what do you mean by the force? The force is an unbalanced external effect that cause onto the body which will change the state of motion of object. So that is called as a force. अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको बोल रहा हूँ और मुझे बाहर पीछे से जोर का हवा अगर आता है, प्रेशर जनरेट होता है फोर्स का, तो वो क्या करेगा, मेरी स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा. तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस इफेक्ट. अभी आप घर पे बैठे हैं, कोई आके आपको पीछे से धक्का मारेगा, आप नीचे गिर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस इफेक्ट. अभी आपकी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, कोई पीछे से आके धक्का मारेगा तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ जाएगी. दैट इज व्हाट अनबैलेंस इफेक्ट. सो द अनबैलेंस इफेक्ट which generally cause the change of state of motion of object, उसको आप क्या कहते हैं, उसका force कहते हैं. So in simple we define the force. Force is means what? To pull or the push acts on a body. आप pull करते हैं या push करते हैं, that acts on a body which generally change the state of motion of the object, which generally also change the state of object, which is generally considered as a force. उसको आप क्या कहते हैं, force से consider करते हैं. So state of motion of object, generally if we consider the state of motion of object का अगर state of motion को हम consider करते हैं, it is generally said that if the state of motion of object it is considered to be
uniform form or maybe in a form of motion or maybe in a form of rest. जनरली स्टेट ऑफ मोशन अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, इफ यू वांट टू बी डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट मे बी आइदर इन अ फॉर्म ऑफ रेस्ट और इट मे बी आइदर इन अ फॉर्म ऑफ मोशन. ये दो फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं. दैट इज जनरली कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ मोशन. अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ रेस्ट. अगर मैं रन कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ मोशन. गाड़ी आपकी खड़ी है, न्यूट्रल है, गाड़ी आपकी खड़ी है, दैट इज फॉर्म रेस्ट. अगर वही गियर में शिफ्ट करते हैं और गाड़ी मोशन स्पीड करती है, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ मोशन. तो फोर्स जनरली यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ एफ. फोर्स को आप किससे डिनोटेट करते हैं? इट इज जनरली डिनोटेड बाय द एफ. एंड फोर्स दैट कुड बी अ वेरी लार्ज और स्मॉल. फोर्स बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, फोर्स स्मॉल भी हो सकता है. फोर्स आइदर कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज और फोर्स आइदर कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल. तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स दैट इज यूजुअली एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अगर आपको फोर्स को इंप्लीमेंटेशन जानना है तो इट इज जनरली इंप्लीमेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज जनरली कॉल्ड एज ए न्यूटन. फोर्स को अगर हम मेजर करते हैं तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम न्यूटन से मेजर करते हैं, NUWTON, जिसको हम कैपिटल N से डिनोटेट करते हैं. The force is generally considered as a part of Newton, जिसको कैपिटल N से डिनोटेट करते हैं. And direction of the force that is in a part of the body that is push or pull, that is called the direction of force. जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी पुश होता है या पुल होता है उसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स से कंसिडर कर सकते हैं. सो दैट इज जनरली. अभी क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो अलग अलग तरीके के इफेक्ट जनरेट करता है. इट कैन बी चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, it can be also change the direction of object, it can also change the state of motion. ऐसे अलग अलग इफेक्ट. मान लीजिए कि जैसे ब्रिक्स है, ओके, या जैसे एक बलून्स है, एक इन्फ्लेटेड बलून्स है, उसको अगर आप प्रेस कर दें थ्रू योर पाम्स तो आप देखो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, राइट. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करिए, यानी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है. तो अगर आप फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक्स हो जाता है. ऐसे सिंपल फॉर्मेशन में समझ सकते हैं. चेंज, शेप चेंज हो सकता है. डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है फोर्स से? जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच देखते हैं, व्हेन यू सी इन द क्रिकेट मैच, बॉलर दैट कम्स टू बॉल द बॉल, बॉल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, बैट्समैन हिट करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में बॉल जा सकता है. दैट इज ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन. ऑल्सो इट ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. मान लीजिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मोशन में आ जाएगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी फॉर्म में आएगा. जैसे अभी आप गियर शिफ्ट करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, गाड़ी मोशन के फॉर्म में आती है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी स्टॉप हो जाती है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द फोर्स. अब जिस तरह का अनबैलेंस इफेक्ट प्रोवाइड करते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, उसका शेप है, वो सारा चेंज हो सकता है. पोजीशन कैसे चेंज होता है? चलिए मान लीजिए अभी आपने एक टेबल पे बैग रखा हुआ है, बुक रखा है, उसको जब तक आप वहां से फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेगा. सो दैट फोर्स इज अ पार्ट ऑफ द अनबैलेंस इफेक्ट व्हिच जनरली रिक्वायर दिस काइंड ऑफ द चेंजेस. So force generally that can be generated due to the interaction. The forces are due to the interaction. ऐसा एक वर्ड हमें समझना है. तो फॉर द फोर्स, अगर फोर्स के बारे में अगर हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, फॉर द स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ फोर्स टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट विद ईच अदर. दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने चाहिए. व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी इंटरेक्ट टू ईच अदर दे जनरली प्रोवाइड द फोर्स. चलिए उसके लिए कुछ एग्जांपल समझते हैं तो हमें आइडिया आएगा कैसे हो सकता है. So generally all you have to be ride the bicycle. आप सब बाइसिकल चलाते होंगे. तो when you sit on the bicycle, wait for it move it on. अगर आप बाइसिकल पे बैठते हैं तो क्या खुद वो चलने लगेगा? It should be move its on? No. So will it move for long times? No, it cannot be moved. When you provide the force onto the pedals, उसके जो pedals होते हैं, pedals पे जैसे force provided करते हैं, that should be with your feet, then bicycle that can be move ahead. तब bicycle क्या होगा? आगे की तरफ move करता है. तो इससे क्या पता चलता है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. द सेम वे, अभी आप घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजा आपको खोलना है. एट द सेम वे द डोर ऑफ योर मे बी योर कपबोर्ड, when you have to be want to open, it cannot be open, rather you cannot be push it. जब तक आप अपने हाथों से उसको खींचेंगे नहीं या उसको पुल नहीं करेंगे, it cannot be open. So the force that needs to be interaction between two objects. जब तक फोर्स कब जनरेट होगा? जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा दो बॉडी. अभी आपको फोर्स जनरेट हो रहा है, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए एयर का फोर्स हमें लग रहा है, काफी ज्यादा एयर विंड फ्लो कर रहा है, तो जब तक हमारे बॉडी से वो एयर इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक वी डोंट फील द फोर्स इज देयर. सो फोर्स जनरली हैज अ पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. दो अलग अलग बॉडी जो होंगे उनके बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, इट कैन नॉट बी फील द फोर्स इज देयर. चलिए मान लीजिए एक सेकंड सिचुएशंस लेते हैं.
So when you interaction with the handles in your hand that makes the door open, आप हैंडल को अपने हाथों से खींचते हैं तो आप फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज व्हाट, इट इज इंटरेक्शन। डोर और हैंड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स को फील करता है। सो व्हेन यू हैव टू बी मूव एनी ऑब्जेक्ट यू अप्लाई द फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। अभी एक ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेम वे द रिजल्टेंट फोर्स is always the sum of all the forces we have to be applied। मान लीजिए एक बड़ा सा स्टोन पड़ा हुआ है रोड पे और हमें उसको हटाना है, उसका वेट काफी ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। we need to apply the more force to remove that kind of stone which is available onto the road। so what we have to do, we have to need to apply the pressure or maybe the force, but whatever the force required to remove that stone from the road, it not sufficient, that is done by you। So we need to apply more and more force by creating two or more than two objects। So whatever the force which is applied by the different objects, they have to always be same as the resultant force which is having to equal। तो F is equal to F1, F2, F3, F4 जितने भी forces होंगे, force that should be equal to implementation that formation। So when two people or maybe three people that push that particular stones in the same direction, that move the faster when only a person pushes it। Now whatever the one person that pulls the particular stone, it maybe moves very slowly, but whatever 3 or 4 person that provide the force, that stone moves very faster। So that is generally part of the force। So एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए suppose two people that to be pushing the table into the opposite direction। मैं इधर सामने से फोर्स लगा रहा हूँ, उसके opposite direction से कोई दूसरा फोर्स लगा रहा है। So in the same way what will be the happen, so generally the table will either move slightly on the where the force that should be more extracted। जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा उधर जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मूव करेगा। सो द टू फोर्सेस हैविंग लेस इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स और द सरफेस फोर्स बिटवीन द टू फोर्सेस। सो ऐसे हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इसको दूसरे तरीके से अगर आप समझते हैं, इट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स ऑलवेज विल क्रिएट द रिजल्ट जीरो। बैलेंस फोर्स मतलब क्या, मान लीजिए अभी टेबल है, टेबल के जो दोनों एंड से उसको आप एक स्ट्रिंग से बांध दीजिए और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों डायरेक्शन से अप्लाई कीजिए। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए। जैसे स्कूल में आप देखते हैं ना, वो रस्सी खींचने का एक कंपटीशन होता है, इधर से गर्ल्स फोर्स लगाती हैं, इधर से गर्ल्स फोर्स लगाती हैं। तो मान लीजिए अगर दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन, कैन नॉट मूव, तो रिजल्ट क्या हो गया, जीरो, इट कैन नॉट बी क्रिएट। लेकिन अगर अनबैलेंस इफेक्ट है, सपोज एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक तरफ से कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जिधर ज्यादा फोर्स लगता है उधर जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस इफेक्ट, राइट। तो अनबैलेंस इफेक्ट होगा तभी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस होगा, और अगर बैलेंस फोर्स है, दोनों तरफ सेम है, तो वो ऑब्जेक्ट का रिजल्ट हमेशा जीरो होगा। चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सो जनरली we have seen that force is a part of the push or pull acts on a body in the change of state of motion, right। उसका जो change of state है या push और pull जब होता है तो उसका state में changes होता है। उसके लिए अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंसेस लेते हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके हम देखते हैं। सो एक टेबल पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप फुटबॉल को किक करते हैं या रबर को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज को आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बाइसिकल्स को पैडल्स प्रोवाइडेड करते हैं, या चपाती के अंदर जो रोल्ड ऑफ होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस होते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होगा, व्हेन यू प्रोवाइड द फोर्स को इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, कोई अपना शेप चेंज कर सकता है, कोई स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, कोई डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सो दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बॉडी, what amount of force that is applied onto the object, it can be generally change the following object। So that should be, if a moving object that can be easily stopped, or maybe the stationary object that can be easily comes into the form of motion, shape change, position change, state of motion change, direction change। These are generally effects which can be generally seen by when the force is applied to the object, right। तो ये इफेक्ट होते हैं फोर्स के, 3-4 तरीके के फोर्स के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पोजीशन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। दिस आर द जनरली फॉर्मेशन व्हेन द फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट। नाउ सो एक दूसरा ऑब्जेक्ट समझते हैं कि द फोर्स दैट आल्सो कैन प्रोड्यूस द मोशन। फोर्स जो है वो मोशन को प्रोड्यूस करता है, उसके एक फॉर्मेशन समझते हैं।
So force that can be applied into the object when you provide the force to the particular object by pushing. जैसे अभी आप मॉल के अंदर जाते हैं, when you moving into the मॉल्स के अंदर आप देखिए ट्रॉलीज होती हैं, या फिर आप एयरपोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो वो ट्रॉलीज होती है बैग्स को कैरी करने के लिए या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मूव करने के लिए, या फिर आप शॉपिंग मार्केट्स में जाते हैं तो इस तरह की ट्रॉलीज होती है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आप लेते हैं और उसको ट्रॉलीज को मूव करते हैं, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को आप रखते हैं. सो फोर्स दैट कैन बी प्रोवाइड टू द ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग और मे बी द हीटिंग विद वन अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, so this applied the force that can be also make the object move. इस जो फोर्स अप्लाई करोगे, हीट करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव होगा, पुश करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव होगा, पुल करोगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव होगा. तो these are the experience which can be seen in the formation. जैसे we push a heavy box to move it ahead. अगर आप हैवी बॉक्स को पुश करते हैं, वी पुल अ कार डोर, कार के डोर को आप खींचते हैं टू ओपन इट, आप उसको ओपन करने के लिए कार के डोर को पुल करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पुश करते हैं. वी हिट अ बॉल, आप बॉल को हिट करते हैं टू मूव द फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. तो दीज आर द जनरली पोर्शंस कि व्हेन यू प्रोवाइड द फोर्स द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कम्स इन द फॉर्म ऑफ मोशन. मोशन के फॉर्म में जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, किक करने पे, हिट करने पे, पुश करने पे, पुल करने पे, द ऑब्जेक्ट दैट शुड बिकम्स इन अ स्टार्ट ऑफ मोशन. सो जैसे अभी आप देखते हैं कि गोल्फ जो खेलते हैं गोल्फर्स, उनके हाथ में एक स्टिक होती है, बॉल स्टेशनरी फॉर्म में होता है, वैसे हिट करते हैं गोल्फर्स बॉल को तो बॉल क्या होता है, मोशन के फॉर्म में आ जाता है, राइट. तो ये फोर्स प्रोवाइड करो तो बॉल किस में आ गया, मोशन के फॉर्म में आ गया. सो जनरली द फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस द मोशन, वो मोशन को प्रोड्यूस करता है. सो ऑल दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, व्हाटएवर द सिचुएशन वी विल डिस्कस, द ऑब्जेक्ट्स विल मूव इनटू द सेम डायरेक्शन एट द फोर्स अप्लाई. फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे. अगर पुल कर रहे हो तो आपकी तरफ ऑब्जेक्ट आएगा, पुश कर रहे हो तो अपोजिट जाएगा, हिट करोगे तो उस तरफ जाएगा. तो व्हाटएवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मूव इनटू द पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा. हाउएवर इससे क्या पता चलता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाई द फोर्स टू ऑलवेज बी प्रोड्यूस द मोशन. जनरली व्हेन यू प्रोवाइड द फोर्स it always will produce the motion. It is not been right into the all the cases. हर एक केसेस में right नहीं है. For example, try the push or pull or hit a tree. Tree है, उसको hit करिए, push करिए, pull करिए. It cannot be moved. Or maybe when you provide the push, pull or hit to the wall, so it can be moved in a form of motion. No. Whatever some of the objects, when you provide the force, it cannot be comes into the form of motion, because whatever the force you have to apply, you are not being sufficient force to move them. Whatever the force that you have to apply to make them into the form of motion, like wall and tree, it is not being sufficient actually amount of force to move them. So it could be force in a specific form of motion, but it always be not necessary. Generally force that comes in an object in the form of motion, but it is not been always been a comes of relation. तो पहला जो इफेक्ट फोर्स का होता है, the force that create the object in a form of motion, right? चलिए दूसरा इफेक्ट फोर्स का डिस्कशन करते हैं. फोर्स that can stop the motion, produce the motion also. सेकंड इसका इफेक्ट होता है फोर्स that can stop the motion. For example, we can stop a moving body by performing a specific amount of force in the direct opposite direction of the motion. Generally, when you provide the force to the object into opposite directions, it can be also it's change its state of motion. How it can be implemented? For example, like you are riding your car. For example, एक simple example लेते हैं. Just for you riding your car, आप अपनी कार को चला रहे हैं. कार जनरली फॉर्म ऑफ मोशन अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो कार है वो मूव कर रहा है, राइट. तो कार इज मूविंग इन द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर स्पीड एंड यू वांट टू स्टॉप द कार. व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू जनरली प्रोवाइड द ब्रेक्स. When you provide the brakes, the car will comes into the form of rest motion. It means it comes into the form of stationary form. So when generally the force that can be applied to the particular object, it can be generally change its state of motion. Object in the form of motion, it comes in the form of station. just like example, दूसरा example लेते हैं. For example कि we apply the force onto the moving ball, ball move कर रहा है, or maybe a rolling stone. However, if the stone is too bulky, stone अगर काफी bulky है तो we may not able to stop, आप उसको रोक नहीं पाएंगे. But however, force is not been sufficient, object cannot be stopped.
तो फोर्स दैट कैन बी ऑल्सो स्टॉप द मोशन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि व्हेन यू प्रोवाइड द ब्रेक, ब्रेक इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर्स, तो व्हेन यू अप्लाइड द ब्रेक टू द मूविंग कार, द ऑब्जेक्ट दैट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ रेस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाइड करके ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड हम डिस्कशन करते हैं, फोर्स दैट कैन चेंज द डायरेक्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आप मोशन के फॉर्म में ला सकते हैं, दूसरा स्टॉप कर सकते हैं, तीसरा जो होता है उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे क्रिकेट मैच है, फुटबॉल का मैच है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, ऐसे क्रिकेट आप स्पोर्ट्स देखते हैं। वैसे में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल टेनिस है या फिर टेनिस है, टेनिस के अंदर देखो जो बॉल हिट करता है प्लेयर्स, तो वो कैसे उसी डायरेक्शन में जाता है, नहीं, अब जिस अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बॉल जाता है। सो व्हेन यू प्रोवाइड द फोर्स अनबैलेंस इफेक्ट, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसमें क्रिकेट मैच का भी बताया मैंने कि बैट्समैन अगर हिट करता है तो बॉल जो है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, तो दैट इज जनरली चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। मान लीजिए आप 30 के स्पीड में जा रहे हैं, पीछे से एक अनबैलेंस इफेक्ट आता है, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन। मान लीजिए जैसे टेनिस प्लेयर है वो हिट करता है और सामने वाला हिट करेगा, तो क्या उसी स्पीड में होगा, नहीं, इट ऑल्सो कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट को है तो अप्लाइंग द फोर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट ऑल्सो कैन स्पीड ऑफ मोशन। तो स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो चेंज हो सकता है। दिस आर जनरली इफेक्ट ऑफ द फोर्स। चलिए फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज कैसे चेंज करेगा उसके बारे में हम समझते हैं। टेक अ बॉल ऑफ कॉटन एज वेल एज इनटू द कैंडी फॉल, उसको होल्ड इन योर हैंड्स एंड अप्लाई द फोर्सेस, आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल चेंज सी दैट इट्स चेंज इट्स शेप, उसका शेप जो होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। Why it can be changed? By applying the force. So these are the generally concept is we have to be seen the effect of force. जैसे स्प्रिंग को आप काफी देर तक होल्ड करके रखेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल लेंथ होगा उससे लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज जनरली हैव टू बी चेंज इट्स शेप, उसका चेंज हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो हमने इफेक्ट डिस्कशन किया, नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप्स क्या है। Generally, for the force to be effective, we must be interact with each other. एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो ही जो है वो फोर्स वो जनरेटेड होता है। So in terms of force that can be interacted between more than two objects, they have to be generally interact otherwise physically, otherwise it cannot be generate the force. So force that can be generated by the physically or maybe the non-physically formation, by contact to physically form or by the non-contact formation। तो ऐसे फॉर्मेशन के हिसाब से दो तरीके के फोर्स जनरेटेड होते हैं। वन इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। पहले हम डिस्कशन करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स हम किसको कहते हैं। Generally, the force which within the two interacting objects are physically contact with each other, then it is called as a contact force. Generally, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फोर्स जनरेट करने के लिए, they physically interact with each other, okay, so that type of force is called as a contact force. So it can be also the contact can also be said that the connectors like a sticks है, piece of ropes है, etc. It is the various kind of the contact force. अलग अलग तरीके के contact forces होते हैं, जिसमें पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स हम कहते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है या इंडस्ट्रीज बन रही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप देखते हैं तो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स वो ब्रेक्स को कैरी करके लेके जाते हैं, है ना, या बहुत पाइप्स कैरी करके लेके जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स है वो ब्रेक्स कैरी कर रहे हैं या पाइप्स को कैरी कर रहे हैं, तो उनमें उनका मसल्स जो पावर है वो जनरेटेड होता है और मसल्स उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं। ऐसे तो फोर्स आपके बॉडी के अंदर मसल्स एनर्जी होगी तो वही ये सारे काम करते हैं, उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। The force that extracted by the muscles of your body is termed as a muscular force. तो हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है वो अगर इस तरह के फोर्स को इफेक्टेड करता है तो हम उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सो द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, इट इज जनरली अ कांटेक्ट फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर कांटेक्ट में वो रहता है तभी इस तरह का फोर्सेस जो है वो जनरेटेड होता है, जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और मस्कुलर फोर्स इज अ पार्ट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, आप अपने स्कूल बैग को लिफ्ट करते हैं तो यू अप्लाई द मसल फोर्स आप अप्लाई करते हैं, तब आप उसको शोल्डर्स पे कैरी करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर दे आल्सो यूज द मस्कुलर फोर्स व्हेन कैरी दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स और द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स
bullocks that generally have to be pull the carts and plug the fields using the muscular force. bullocks भी क्या होते हैं, अपने एनर्जी मसल्स के थ्रू ही कार्ट्स को कैरी करते हैं और फिर वो जो फील्ड है उसको प्लग करते हैं. सो इन दैट फॉर्मेशन द मसल्स दैट कैन बी used as a part of your body turns the force that is called as a muscular force is a part of the contact force. चलिए उसके बाद एक आता है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है वो कांटेक्ट फोर्स का ही पार्ट है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है पहले तो वो समझते हैं. द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स जिसको कहते हैं. द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स. It generally slow down prevent the moving by acting the direction opposite in the form of motion by moving object. जो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है उसके स्पीड को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो रिड्यूस करता है. द फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट. द फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेस. दो सरफेसेस के बीच में इंटरेक्शन जनरेटेड होता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स से कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल अ बॉल दैट रोलिंग अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इट कम्स फाइनली इनटू द फॉर्म ऑफ रेस्ट. बॉल जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा है और कुछ टाइम के बाद वो स्लो डाउन हो जाता है. इट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ रेस्ट. फाइनली इट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ रेस्ट. तो वो ऑब्जेक्ट पे तो आपने किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं किया है फिर भी इट विल कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ रेस्ट. तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स. दो सरफेसेस के बीच में अगर वो ऑब्जेक्ट का अपोज कर रहा है मोशन को स्लो डाउन कर रहा है तो दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स. इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. मे बी अ कार और मे बी द स्कूटर दैट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ रेस्ट आफ्टर द engine is stopped. Why? Because the frictional force between the road and tires that have the reduced speed of motion gradually because of the friction that provided by the surface, it can be easily the person can be walk and run. So it is very difficult to walk on very smooth surfaces comparing to the rough surface. Smooth surface have a less friction and rough surface is a very big amount of friction. So that's what जो surfaces होते हैं smooth वो थोड़ा सा slippery होती है क्योंकि friction वहाँ पे कम होता है. So due to the friction we can easily able to walk and run onto the surfaces. ओके तो दो हो गए कॉन्टैक्ट फोर्स में. पहला हो गया जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स. तीसरा जो होता है उसका मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. चलो मैकेनिकल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में कैसे कंसीडर होता है वो हम समझते हैं. द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द मशीन, जो फोर्स मशीन अप्लाइड करते हैं ना उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल फोर्स. इट वर्क्स हेल्प विद द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सर्फेसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल है, एटसेट्रा व्हाटएवर गैस है. इसके थ्रू जो मशीन्स को एनर्जी मिलती है उसके थ्रू वो अपने मोशन स्पीड को जनरेटेड करते हैं. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल फोर्स. वो भी एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स है. विद द हेल्प ऑफ फ्यूल दे कैन मेक्स एट द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ मोशन. इसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. जब तक आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, सीएनजी प्रोवाइड नहीं करोगे, पेट्रोल डीजल कुछ भी प्रोवाइड नहीं करोगे, इट कैन नॉट बी स्टार्ट टू बी मूव. चलिए नेक्स्ट जो आता है उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. The force which do not require any kind of physical contact with the two objects, उसको आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है. द फोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इट्स कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स एक्सट्रैक्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. सो जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें जैसे आप मैग्नेट के स्पेसिफिक डायरेक्शंस के थ्रू अगर आप आयंस के नेल से when you put the iron nails onto the tables पे आप iron nails को रखते हैं, when you just carry the magnet near of this part of the iron nails that can be moved according to the direction of magnet. तो वहां तो आपने कोई भी फिजिकल कांटेक्ट किया नहीं फिर भी फोर्स एक्सट्रैक्टेड हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्स एज अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो मेटल्स के आयन से या फिर निकल से, स्टील है, कोबाल्ट है, दैट्स विदाउट द बीइंग टू कांटेक्ट विद देम वी कैन इजीली चेंज इट्स position. So that is called the non-contact force. So as you also studied into your earlier classes, like poles of magnet that should be repel each other and unlike forces that should be attract to each other. ठीक है, जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स जनरेटेड करते हैं और जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेटेड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ पोल, पुश और पुल. इसमें एक और आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मोस्ट ऑफली you have to be observe into your daily life the force that should be extracted by the charged body to the another charged or uncharged body. The force extracted to the one charged body to the another charged or uncharged body, that is called as the electrostatic force. उसको आप electrostatic force कहते हैं.
So charges that can be attracted to the repulse like a magnet, जैसे रिपल्सिव फोर्स होते हैं मैग्नेट्स के, वैसे ही चार्जेस इसमें होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू रब कॉम्ब और स्कैल्प ऑन अ ड्राई हेयर पे, इज अनदर एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा. When you generally rub a specific formation of comb on scalp on your dry hairs, it gets to be charged. Positive negative ions का जो composition होता है वो charge होता है. And the tiny piece of papers, very tiny pieces of papers that can be attracted due to that electrostatic force, which is extracted by the scalp without touching them. आप उसको टच किए बगैर भी आप उसको खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं. That is called as a electrostatic force. It is also part of the non-contact force. Third is called as a gravitational force. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटी क्या है. ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून इज जनरली अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द अर्थ पे जितना ग्रेविटेशन फोर्स है उसका 6 टाइम लेस जो है वो मून पे अप्लाई होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? The gravitation force is the force which one of two masses of object that pull to each other. दो object which having a specific mass they pull or push to attract each other. That is called the gravitation force. We can only feel कि example when we try to pull as a significant mass object which having a significant mass and we have to try pull. For example, we generally feel the gravitational force of the earth because it is a very big. Earth का surface क्या बहुत बड़ा है, तो gravitational force भी क्या होगा, बड़ा होता है. It having a very large amount of gravitational force there. So when the gravitation force that can be applied the object that attract the object onto its sides, अपनी तरफ उस object को खींचता है, so that's giving a very large enough formation. जैसे object को आप रिलीज करते हो सडनली हाइट से, फिर भी वो क्या होता है नीचे की तरफ आता है. So उसके कुछ रूल्स हैं. ग्रेविटेशन फोर्स बहुत तरीके से हमें हेल्प करता है. जनरली इट कीप्स बॉन्ड्स विद द अर्थ, हमें अर्थ के साथ बाइंड्स करके रखता है. उसके साथ साथ आप देखिए कि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज जनरली ग्रेविटेशन फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. तो वेट और मास एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो ग्रेविटेशन पे डिपेंडेंट. मास मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच इज अवेलेबल इन योर बॉडी, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज अवेलेबल इन बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास. मास को केजी में मेजर किया जाता है. लेकिन वेट क्या है? वही ऑब्जेक्ट जिसका स्पेसिफिक मास और उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? वेट कहते हैं. और वेट को आप न्यूटन में मेजर करते हैं. ठीक है. 1 kg फॉर्मेशन जो होगा 1 kg यानी कि 9.8 न्यूटन. अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसको वेट क्या हो गया? 9.8 न्यूटन वेट उसका होता है. उसके साथ जो रिवॉल्यूशंस होते हैं, जो सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अराउंड ऑफ अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट है. बाकी के सारे प्लैनेट्स जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं वो भी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट है. जो टाइड्स और वेव्स आते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ सन एंड मून, वो भी ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है. तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज बी ऑब्जेक्ट्स बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट कॉज द रिपल्सन फोर्स. तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है, जबकि ये जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? आपके रिपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं. सो दिस इज जनरली पार्ट ऑफ द फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो मैग्नेटिक जो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज जनरली यूज्ड इनटू द ट्रेन्स व्हिच इज नोन एज अ मैग्लेव ट्रेन्स. ट्रेन्स के अंदर भी इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किया जाता है जो मैग्लेव ट्रेन होता है. मैग्लेव ट्रेन क्या होता है कि दिस जनरली हैव टू मूव्स अ वेरी स्पेसिफिक सेंटीमीटर्स ऑफ हैव टू बी ट्रैक से कुछ साइड पे होते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन they can be move very faster. That can be seen in the most of in the very developed countries like Japan. वहाँ पे देखने को मिलता है, राइट. सो आई होप कि आज का जो सेशन अभी तक आपने पढ़ा है अबाउट द फोर्स, कि फोर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, हाउ इट कैन बी जनरेटेड, दैट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय यू स्टूडेंट्स. सो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया. तो आई रिक्वेस्टेड टू कीप रिवाइजिंग, अपडेटिंग योर नॉलेज बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स ऑफ लर्निंग. एंड स्टूडेंट्स वंस अगेन स्टे होम एंड स्टे सेफ. When we'll meet tomorrow, we'll discussing about the topic of pressure. आज फोर्स का डिस्कशन किया, we'll discussing next topic of pressure under tomorrow's lectures. But today, whatever you have to study in the today's topic about the force, its types, its effect, just revise and update your knowledge. Once again, stay safe, stay home, keep revising, keep updating knowledge. Take care and bye.